Hello, everybody. Dr. Sarah here, and today we have Dr. Sejal Singh, who has cleared this Jan 2025 FMG examination with an amazing score of 193. Congratulations, Doc. We are really proud of you. How are you feeling right now? Thank you so much, ma'am. I'm just feeling like this feeling is beyond words. So, tell me about the day of. We have heard so much about it that the exam was tough. Can you, in your words, describe me the whole exam, how it was for you? Um, at the time, like while we were doing the exam, it was like most of the things we have read about or heard somewhere, but still they felt like it's the first time. It's like everything was feeling like it's new. We're just seeing it for the first time. But it's that feeling like you have to just, the first thing first is like you trust your instincts. If you feel this is the option, like out of nowhere, sometime it's like you just feel this might be the answer. Just go with that. Just mark that answer. And the questions which you knew very well, just like in the first time, just mark the correct answer. Don't mark it for the review or anything to do with it later. आपने बताया था कि आपका पहला अटेम्प्ट है, राइट ये? Yes, yes, ma'am. तो आपके लिए सब नया लग रहा था। तो व्हाट वाज़ द डिफरेंस? लाइक सब बोल रहे थे पेपर 1 टफ है। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? Paper one, comparatively to two, was a bit like bit tougher. टफ हाँ। But paper two was like mostly questions गायनाक से थे, या फिर there was a mixed bags, like fixed number of subject जो हमेशा आते हैं वैसा नहीं था. कुछ कोई भी subject कभी भी आ रहा था, but you have to just like for that you have to like from the first practice mixed bag of questions. तो पेपर में जाके वो चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा ये मैंने पहली बार देखा है. वो स्विच करने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है. इट विल लुक फेमिलियर टू यू. तो टेल मी मोर अबाउट यू डॉग। अभी तक हमारा ढंग से इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? कैसे ये जर्नी डिसाइड करी थी? कैसा लग रहा है अभी? सब कुछ। मैं एक्चुअली फ्रॉम कोटा राजस्थान हूँ. फर्स्टली आई डिसाइडेड टू गो चाइना. तो माय मॉम टुक दिस वेरी बोल्ड स्टेप. शी जस्ट लाइक, okay, you need to do this. Okay, this is the only option. You have to go somewhere. And me and my dad were like, no, it's too far. कुछ टाइम चाइना में थे, फिर कोविड आ गया, फिर घर आ गए. तो दैट टाइम आई डिड नथिंग. दैट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड नथिंग. Then after going back, I had like so much to do. We have to cover up the things the time we lost in COVID. Also, we had to do the internship, which is like compulsory to do in China. तो वो भी करना था. Then we didn't get so much time to prepare in China. तो फिर जब वापस आई घर पे तो ये था कि सब बच्चों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है. आई डिडंट इवन डू एनीथिंग. सो आई फेल्ट लाइक आई एम नोवेयर. लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो व्हेन आई केम बैक होम. तो अराइज का ये नया बैच शुरू होने वाला था. आई जस्ट केम टू नो अबाउट इट. आई जॉइंड इन August 5. I already started late. मैंने बैच भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था because I just came home. I didn't even get enough time at home. Then I started the offline batch, took regular classes. So I first thing was like I started to complete all the subjects for at least one time. So it took me a lot of time to complete the first reading because क्योंकि हम पहली बार वो चीज पढ़ रहे हैं तो समझने में और फिर रिमाइंड करने में भी टाइम लगता है. तो फर्स्ट रीडिंग के लिए बहुत टाइम लगा. फिर उसके बाद आई हैड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 to 2 months which I gave solely for revision. So I started doing the revision and like जैसे एक सब्जेक्ट अगर अभी किया है तो then second reading was like after 15 days. So I can even like see if I remember the stuff which I studied before 15 days. तो ऐसे कर करके फिर then I started the revision. Then I even like I did so many revisions कि end moment पे I used to like even revise some subjects in even 6 to 7 hours.
Wow, that's amazing. That's really Or good. simultaneously, I used to do MCQ practice. Whenever I did waste the time, I used to feel so guilty. Even if I slept like for one more hour or like 30 more minutes, I used to feel like so guilty, like I have wasted so much time. Tell me about, like, describe one day of your life as an aspirant. Um, I used to take offline classes, so my daily routine was used to be like the classes usually started by 9. So Mhm. I just used to wake up by 7, 7:30, and then I did the breakfast and everything, got ready. And I used to go like 1 hour to 30 minutes before the classes. तो क्लास के पहले जाके 1 घंटे या 30 मिनट आई यूज टू रिवाइज दोस थिंग. और अगर रिवाइज भी नहीं करना है, जस्ट डू द एमसीक्यू उस टॉपिक का जो क्लास में उस टाइम पढ़ाया गया है. आई यूज टू ट्राई कि जो आज पढ़ाया है वो मैं आज खत्म कर लूं, तो मुझे वो इकट्ठा ना होता जाए और फिर मुझे ऐसा ना लगे कि ये पढ़ तो लिया है लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी तरफ से. तो मैं कोशिश करती थी कि आज जो पढ़ा है वो आज मैं खत्म कर लूं, और अगर थोड़ा टाइम है तो फिर वही सेम टॉपिक या यूज टू डू द एमसीक्यूज और वॉच द पीवाईक्यू वीडियोस. दैट यूज टू बी माय डेली रूटीन. उस टाइम पे जब पहली रीडिंग चल रही है तो मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया है. और कितने क्वेश्चंस लाइक टारगेट थे कि इतने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए मुझे हर? देयर वाज नो लाइक फिक्स टारगेट, पर ऐसा था कि 1 घंटा मिनिमम आई कैन डू वन बट आवर एवरेज कितने हो जाते थे? लाइक हर रोज करते थे? आई यूज टू ट्राई टू डू लाइक एवरी डे. पर आई यूज टू ट्राई कि मैं करूं जितना हो सके एमसीक्यू में, वो ऐसा भी हो कि मैं नोट्स भी पढूं और साथ में एमसीक्यूज भी करूं. व्हाट अबाउट राइज जीटीज? मतलब आपने जीटी दिए थे एग्जाम के लिए, और क्या सोचती हो आप, क्या जीटी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए? हाँ मैम, जीटी बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे भी पहले लगता था कि नहीं है इम्पोर्टेंट. मैंने बहुत लेट जीटी ट्राई किया क्योंकि ऐसा होता था कि मैंने अभी पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सब्जेक्ट मैंने पढ़े ही नहीं है. तो मुझे लगता था कि बहुत कम नंबर आएंगे और आई यूज्ड टू फील सो स्कैर्ड कि इतने गंदे नंबर आएंगे. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैंने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है. तो मैंने बहुत लेट जीटी स्टार्ट किया. पर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जीटी आई यूज्ड टू फील के इतना डिफिकल्ट भी नहीं था जितना मैं उसको सोच रही थी या बना रही थी कि इतना बड़ा चीज है. मुझे याद है पहला जीटी मैंने जब दिया था, इट वाज आई थिंक आई स्कोर्ड 128 और समथिंग लाइक दैट. फिर वो ग्रेजुअली जैसे जैसे देने लगी तो कुछ चीजें खुद से भी समझ में आई कि ये अगर क्वेश्चन में ये हिंट है तो आंसर यही होगा. भले कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता वो क्वेश्चन क्या है या किस टॉपिक पे है, हमने नहीं पढ़ा, पर वो इतना मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाता है कि आपको याद हो जाता है कि हाँ अगर ये हिंट दे रखा है तो यही होना चाहिए. एंड में मैंने काफी जीटीज दिए तो उसमें काफी अच्छा स्कोर था. समटाइम्स आई इवन यूज्ड टू स्कोर लाइक 200 प्लस. तो मुझे ये था कि चलो जैसा भी पेपर आएगा मैं पास तो कर लूंगी. आज तो क्या आपने जीटी रिवाइज करे थे? यस मैम. कि अगर हम जीटी देते और उसको रिव्यू नहीं करते तो वो इक्वल टू कि हमने जीटी दिया ही नहीं. दिया ही नहीं, हाँ। वो जीटी देंगे और रिव्यू करेंगे, उसमें एक दिन पता जाएगा. चलेगा, हाँ। आई अग्री कि वो एक दिन जाएगा और हमें लगेगा भी कि हम एक दिन पढ़ सकते थे और ये वेस्ट हो गया जीटी में. पर वो हमें बाद में लगेगा कि नहीं यार वो वेस्ट नहीं हुआ, वो एट द बैक ऑफ आवर माइंड वो है अभी भी वो चीज. तो आई थिंक जीटी इज रियली इम्पोर्टेंट. I'll ask you about you. Like, आज आप एक डॉक्टर हो. What if you could go back 6 months and meet Sejal the aspirant? What what advices or what things would you tell Dr. Sejal to avoid? कि ये नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल मत करो, और ये प्लीज इसको और अच्छे से करो. I would advise ki give more GTs or don't feel scared. I know you can do it. Don't be like कि नहीं मैं नहीं कर सकती, दिस इज सो डिफिकल्ट और बच्चों ने तो इतने इतने बार पढ़ रखा है, 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, पूरा सिलेबस 5-5 बार हो रखा है, मैं अभी पहली बार हूँ. आई यूज टू फील सो नर्वस अबाउट दिस थिंग. सो आई विल से टू माई सेल्फ लाइक डोंट बी नर्वस, you just focus on yourself, do what you're doing everything right. Amazing. I think वही बात होती है ना, being underconfident and not believing in yourself plays such a important. Yes, yes, ma'am. Or especially like if you're studying in offline classes,
तो ऐसा होता है कि आसपास इतने बच्चे सब हैं, दिखते तो हैं। वो ऐसा लगता है कि ये इतना पढ़ रहा है, इसने इतना बार कर लिया है, ये एमसीक्यू भी करे, ये भी करे, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर दिस पर्सन एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड। तो अगर इनका नहीं हो पा रहा, मेरा कैसे होगा? आई यूज्ड टू फील सो नर्वस अबाउट दिस थिंग, बट इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स ऑल। आसपास जो हो रहा है उससे आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में एक और चीज है ना, दिस days where some days are amazing, like you're motivated, right? सब पढ़ाई हो जा रही है. But there are also days where you have your lows, right? Where कुछ यस मैम, पढ़ाई यस मैम। नहीं हो पाती, या जैसे आपने कहा कि आप नर्वस होते थे या डिमोटिवेटेड हो जाते थे. तो how did you bring yourself up, or how did you face such emotional and mental pressures? दिस जर्नी जो भी 6 मंथ्स की या कोई 2 बार देता है तो 1 साल की, इट्स लाइक फुल ऑफ अप्स एंड लोज। बहुत बार ऐसा होगा कि हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आराम से पेपर कर लूंगी, और दूसरे दिन शायद ऐसा होगा कि लगेगा कि मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ा है वो याद ही नहीं है। सो और समटाइम्स ऐसा भी होगा कि पढ़ने का अभी शायद पढ़ भी लिया है, नहीं भी पढ़ा है, पर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर जिस दिन ऐसा होता है, टेक टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, उस दिन थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, चिल करो। पर अभी इस चक्कर में मुझे कल नहीं खराब करना है। आज मैंने अपना रिलैक्स कर लिया, आज मैं फिर टाइम से सो गई, और फिर अगले दिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के, या फिर ये है कि आज वाला मैं कैसे थोड़ा सा कवर कर लूँ, उतना तो नहीं कर पाऊंगी पर शायद थोड़ा हो जाए, तो अगला दिन मैं इस चक्कर में वेस्ट ना करूं। तो ऐसा होता था कि आज का तो मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन अगले दिन से मैं आई जस्ट फॉलो एंड स्टिक टू माई रूटीन। What about your journey in Arise? कैसी रही? आपको क्या पार्ट्स अच्छे दिखे? क्या मतलब थ्रू आउट योर ऑफलाइन जर्नी क्या कैसा फील किया आपने? Rise has played like a big role in me making pass this exam, क्योंकि मैं जब आई थी राइज में, मैंने जीरो से स्टार्ट की है Yes, चीजें। sir. मैंने ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं पढ़ी हुई थी, चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन वो इतना ब्रेक हो गया कि मैं भूल गई थी। पर जब हम्म. लाइव क्लासेस में सर वगैरह वो चीज पढ़ाते थे दोबारा, तो ऐसा है कि जब हमको कोई और समझाता है तो हम थोड़ा सा बेटर समझ पाते हैं। तो वो चीज थी, और सारे ही जो टीचर्स है राइस के, वो दे आर लाइक रियली हेल्पफुल। लाइक आप उनसे कभी भी कुछ भी डाउट पूछो, सिर्फ डाउट ही नहीं है, आपको कभी ऐसा होता है कि मेनी ऑफ द टाइम्स यू आर एंशियस, एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, तो यू टेक्स्ट देम एवरी टाइम, एनी टाइम, लाइक वेन एवर दे आर फ्री दे जस्ट रिप्लाई यू बैक, और दे जस्ट टेल यू लाइक आप ये चीज अगर गलत कर रहे हो, जीटीज नहीं दे रहे हो जिस भी बारे में, so they'll reply you and they'll help you with that thing. So I all the faculty is like great and Arise. They're like really helpful. Which ones would you like to mention? जैसे आप. Um, I would mention Priyan sir, because I studied medicine like the very first time. I used to hate medicine, like literally hate medicine. So now I am like fine with medicine. I actually like studying medicine because of Priyan sir, and also Rajiv Dhawan sir. He's like really great and like really polite. Khalil sir, all the faculties are like really helpful. Anytime you go and ask them the doubts or any about anything, they'll like really help you. What about the last month, Doc? Arise had its own T&D और QRB Yeah. सेशंस. क्या आपने वो अटेंड करे और क्या उसका फायदा हुआ आपको? यस मैम, आई यूज टू लाइक, जब टीएनडी होता था तो मैं लाइव तो नहीं अटेंड कर पाती थी हमेशा, पर मैं ट्राई करती थी कि जैसे आज जो टीएनडी हुआ है क्लास में, वो मैं आज रात तक देख लूं। तो मुझे है कि अब आगे जो सब्जेक्ट्स होगा वो इकट्ठा ना हो मेरे साथ। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के मैंने टीएनडी अटेंड किए हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मैंने उनको 2 बार भी देखा है। और क्यूआरपी Yes. मैंने ऑफलाइन भी अटेंड किया था 1-2 दिन के लिए, फिर बाकी का जो था मैंने ऑनलाइन अटेंड किया, पर क्यूआरपी मैंने पूरा अटेंड किया। और जो सब्जेक्ट के नोट्स थे उसके साथ मैंने क्यूआरपी को भी सब्स्टिट्यूट किया। तो ये है कि जो कुछ चीज अगर सब्जेक्ट वाले नोट्स में मिस हो गई, या हमने उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जब क्यूआरपी हुआ और हमको सर ने बताया कि ये भी इम्पोर्टेंट है या ये कुछ नया बताया है, तो वो उसमें ऐड ऑन हो गया। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज छूट गई हमारी।
Which subjects did you repeat twice? जैसे आपने बोला. मैंने मेडिसिन किया है और एनाटॉमी आई डिड मल्टीपल टाइम्स, फिजियोलॉजी आई डिड मल्टीपल टाइम्स, पैथो, ईएनटी, ऑप्था, फार्माकोलॉजी। आई यूज्ड टू डू फार्माकोलॉजी ऑन अ डेली बेसिस, तो वो एक है। माइक्रोबायोलॉजी, लाइक मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स। ऐसा कभी होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ पाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो भी रिवाइज करोगे, सो यू कैन पास एटलीस्ट। अभी आपके जूनियर्स ये जून जुलाई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? आई जस्ट से कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग इट एंड लाइक ट्राई टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर एवरी डे, फोकस ऑन वन डे एट अ टाइम, और छोटे छोटे स्टेप्स और छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करने से दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द एंड। और आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, ट्राई टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, or try to do MCQ on a daily basis, or at least as much you can, and especially PYQs, do PYQs like at least 2 times. I'll just say like you need to mark some points जो क्लास में पढ़ते टाइम भी टीचर्स हमको बताते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एटलीस्ट एंड में रिवाइज करके एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट। Thank you so much, Doc. It was such a blessing to talk to you and get to know your point of view regarding the exam. We're very proud of you and congratulations once again. थैंक यू मैम। And थैंक यू मैम, थैंक यू proud सो of you मच। that you've cleared this exam and keep going. ऐसे ही नाम रोशन करना हम सबका. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।